تربیت. تو میرے عزیزو، ہم جب اپنے بچوں کی بھی تربیت کرتے ہیں، جیسے کہ مثال میں لکھا ہے، اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر کہ تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی نہ. میرے عزیزو، آج میری اور آپ کی تربیت کے لیے خداوند یہاں پر موجود ہے. ہلیلویا. کیونکہ میرے عزیزو، آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ خداوند کی حضوری کس قدر پاک ہے، اور جہاں پر ہم خداوند سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، اس لیے کہ حکمت ہے. آج بہت سے لوگ جب خداوند کی حضوری میں چرچ آتے ہیں تو خداوند کی حضوری کا تجربے سے ناواقف ہوتے ہیں. وہ پوری طرح عبادت کا حصہ نہیں بنتے، اپنی باتوں میں اور اپنے بچوں میں کھوئے رہتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں اور خیال میں مصروف رہتے ہیں. تو میرے عزیزو، آئے ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے، میرے ساتھ نکالیں خروج کی کتاب، اس کا 3 باب 2 سے 5 آیت تک پڑھیں گے. اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا. اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پھر وہ جھاڑی رسم نہیں ہوتی. تب موسیٰ نے کہا، میں اب ذرا ادھر اترا کر اس سے اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ کیا جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی. جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو اترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکار کر کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ. اس نے کہا، میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا، ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے. آمین. میرے عزیزو، سوال ہے کہ یہ کہ وہ زمین یا جگہ کیوں مقدس تھی؟ جی، کیونکہ خدا کی حضوری وہاں پر تھی. تو میرے عزیزو، موسیٰ کی تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. موسیٰ فرعون کے پاس 40 سال رہا. جب اس کی شادی ہوئی تو اپنے سسر کے ہاں بھیڑ بکریاں 40 سال تک چراتا رہا، اور 40 سال تک جنگل بیابان میں جو مصر میں سے نکال کر خدا کے لوگوں کو لایا تھا، تو اس کی ٹوٹل خدمت 120 برس تھی. تو میرے عزیزو، موسیٰ جب بھیڑیں بکریاں اپنے سسر کی چرا رہا تھا تو وہ پہاڑ پر جہاں پر فرشتہ وہ جھاڑی میں دکھائی دیا، تو میرے عزیزو، موسیٰ نے دیکھا کہ میں اس منظر کو، اس محاذرے کو دیکھوں کہ یہ پہاڑی اتنی یہ جھاڑی کیوں جل رہی ہے. وہاں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے. وہ اس منظر کو دیکھنے کے لیے اس پہاڑ کی طرف چلا جا رہا تھا. تو جب وہ جا رہا تھا اس منظر کو دیکھنے کے لیے، تو موسیٰ جب وہاں پر پہنچا تو خدا کی آواز آئی. کیا آئی؟ خدا کی آواز آئی، اے موسیٰ. خدا نے اس کو 3 مرتبہ پکارا.
تو موسیٰ نے کہا اے خداوند میں حاضر ہوں. تو جب اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں تو اس نے خدا نے کہا کہ اے موسیٰ جہاں پر تو کھڑا ہے یہ جگہ کیا ہے؟ پاک ہے. تو کیا کر اپنے جوتے اتار کر یہاں پر آ سکتا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ خدا کی حضوری ہے. تو آج ہم میرے عزیزو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر ایک چیز بچے یا بڑے یا بزرگ یا عام یا خاص یا خادم کیا کرتے ہیں؟ یہ خدا کا مذبح ہے جہاں پر بھی لگایا جاتا ہے، چاہے فیسٹیول ہو یا عام عبادت ہو یا چرچ کیوں نہ ہو، تو وہاں پر جہاں پر خدا کا کلام پیش ہونا ہوتا ہے تو وہ جگہ کیا ہوتی ہے؟ مقدس ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے. ہمارے بچے یہاں پر جوتیاں لے کر آ جاتے ہیں، بڑے بڑے خادم جو یہاں پر پرپٹ پر خدا کے مذبح پر جوتیاں لے کر آ جاتے ہیں. مگر میرے عزیزو کیا ہم ان نبیوں سے بڑے ہیں جن سے خدا کلام کرتا تھا؟ آج میرے اور آپ سے ہی وہی کلام ہے. کیا کلام تبدیل نہیں ہوا؟ ہم بھی خدا کے لوگ ہیں، خدا ہمارے سے کلام کرتا ہے. کیا موسیٰ سے اکیلے سے کلام کرتا تھا؟ کیا اس کے لیے کہ وہ جگہ پاک تھی؟ نہیں. آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ جگہ پاک ہے. تو میرے عزیزو اس کا مقدس جگہ کا احترام کریں. آج کئی لوگ ایسے ہیں جو بچوں کے انجیل مقدس کے ساتھ کئی چیزیں رکھی ہوتی ہیں. تو میرے عزیزو خدا کے کلام کی عزت کرنا سیکھیں، کیونکہ خدا پاک ہے. خدا جو ہے نا عظیم خدا ہے، اس کی تعظیم کرنا سیکھیں. اگر ہم میرے عزیزو خروج کی کتاب اور اس کا 30واں باب اور 21ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہارون اپنے بیٹوں کو تربیت کر رہا ہے. جب وہ خدا کے خیمہ اجتماع میں قربانی گزارنے کے لیے جاتے تھے تو ان کو کہتا تھا اپنے ہاتھ پاؤں دھو کر اپنے آپ کو صاف ستھرے پاکیزہ ہو کر جانا ہے. تو اس وقت کا قانون یہ تھا کہ ہاتھ اور پاؤں دھونا اور دوسرے لفظوں میں وضو کرنا یا اپنے آپ کو پاک کر لینا. لیکن قانون آج ہر ایک شخص کے لیے گوارا ہوتا ہے کہ خداوند کی حضوری کمال اور پاکیزہ ہے. آج ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح کے خون میں دھلنا ہے. خدا کے پاک خون سے دھل کر خدا کے گھر میں آنا ہے. جب ہم ایسے ہی ناپاک ہو کر آئیں گے تو میرے عزیزو ہماری عبادت قبول نہیں ہو سکتی. تو میرے عزیزو کیوں؟ کیونکہ ہمارا خدا پاکیزگی کا خدا ہے. تو میرے عزیزو ہمیں صاف ستھرے اور اپنے دل سے، من سے، دھیان سے جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو ہمیں بالکل صاف ستھرے ہو کر، پاکیزہ ہو کر، اپنے خیالات، ہر کام شام ہر چیز کو چھوڑ کر خدا کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے. تو میرے عزیزو ہم جانتے ہیں کہ ہم کاموں میں مصروف رہتے ہیں، ہمارے کام بہت ہیں، مگر سارے کاموں کو چھوڑ کر ہمیں خدا کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے. جب ہم خدا کی حضوری میں آئیں گے تو ہمیں برکت اور برکت ملے گی. ہاللیلویا. ایسا نہ ہو کہ ہم قربانیاں گزارتے جائیں اور ہمیں کچھ حاصل نہ ہو. تو میرے عزیزو ہمیں ایسے سوکھی قربانی خدا نہیں مانگتا، وہ دل کی قربانی مانگتا ہے. ہم جب دل سے خدا کی حضوری میں آئیں گے اور خدا کے
मदद सराही करेंगे, उसका कलाम सुनेंगे और फिर हम खुदा हमारे से क्या करेगा, बातें करेगा। अगर हम खुदा से रफाकत रखना चाहते हैं तो खुदा की हजूरी में बिल्कुल सिंसियर होकर आए, क्योंकि खुदा हमारे दिलों को जानता है। खुदा हमारे दिलों को देखना चाहता है कि या दिल से आता है या ऐसे ही बातें करने के लिए आता है। तो मेरे अजीजों, हमें बातें करने की या ऐसी इधर उधर की बातें, जब हम खुदा के घर में आते हैं तो हम मोबाइलों पे लगे रहते हैं या अपने बच्चों के साथ बातें करते रहते हैं या आपस में बातें करते रहते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा ऐसी इबादत को अच्छा नहीं समझता। जब आते हैं तो खुदा के मजबे की तरफ ध्यान लगाएं। और खुदा, जब हम गीत गाते हैं तो फिर भी हम बातें करते रहते हैं। जब खुदा का खादम कलाम सुनाता है तो फिर भी हम बातें या मोबाइलों पे लगे रहते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा पाक वो पाकीज़गी का खुदा है। अगर हम यशवा 5 बाब और उसकी 14 और 15 आयत को भी हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी जब वो जंग करने के लिए जा रहे थे तो खुदा के फरिश्ते ने उनसे कलाम किया कि ऐ यशवा, जहां पर तू जा रहा है वहां पर क्या है, खुदा की हजूरी है। जब खुदा कलाम करता है नबियों से तो क्या मेरे और आपसे क्या कलाम नहीं? ये कलाम हम सब के लिए है। मेरी और आपकी क्या करता है, तरबियत नसीहत करता है, हमें समझाता है। तो हम मेरे अजीजों समझते हैं, हम अपनी बातों में अपने ही ख्यालों में रहते हैं। अगर यशवा उसकी बात ना मानता तो यशवा ने ही कहा कि ऐ खुदा, मैं क्या हूं, हाजिर हूं। तो यशवा ने भी क्या उसकी बात नहीं मानी? यशवा ने उसकी बात मानी, अपने पांव और अपनी जूती और अपने आप को क्या किया, खुदा की हजूरी में साफ सुथरा पेश किया। क्यों? क्योंकि खुदा की हजूरी वहां पर मौजूद थी। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा के घर में आते हैं, क्योंकि खुदा हमारा बाप है। उसने जसाया में भी यही कहा। अगर आप घर में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे अजीजों, अगर आपके पास वक्त हो, जसाया 20 उसकी पहली और दूसरी आयत में भी आप पढ़ सकते हैं। वहां पर भी यही हमारे लिए हुक्म है, साफ सुथरा पाकीज़गी का। तो फिर जब हम साफ सुथरे पाक साफ होकर खुदा के घर में आएंगे तो फिर खुदा हमारे से भी कलाम करेगा। क्या खाली इनसे ही कलाम करता था? नहीं, आज मेरे और आपसे सबसे कलाम करता है। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा के घर में आते हैं, खुदा के मजबे पर आते हैं तो हमें साफ सुथरे और पाकीज़ा होने की जरूरत है। तो मेरे अजीजों, जब हम दूसरा भी इसका एक हवाला है, जब हम रुक कर आज मेरे अजीजों, जब हम पुराने यादनामे में पढ़ते हैं पहला सलातीन उसकी 8 और 5वीं आयत से लेके 54 आयत तक, 54 आयत 5, 4, ये जब पढ़ते हैं तो रुक कर किस तरफ हमने दुआ करनी है, किस तरफ होकर हमने खुदा के आगे झुकना है। तो मेरे अजीजों, पुराने यादनामे में सुलेमान बादशाह के खुदावंद की हैकल जिसने बनाई, तो अब हम खुदावंद के घर की बरकत के बारे में देखते हैं। आज मेरे अजीजों, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो किबले की तरफ रुख कर दुआ करते हैं, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। सब कौमें हैकल में जाकर क्या करती थी, हैकल की तरफ रुख कर क्या करती थी, दुआ करती, इबादत करती थी। तो मेरे अजीजों, आज हम कितने खुश नसीब लोग हैं, क्योंकि आज हम में से पाबंदी कोई नहीं। आज हमें खुदा ने हर तरफ, जिस तरफ भी हम
रुख करें, मुंह करें, तो खुदा हमारा हर तरफ क्या है, मौजूद है। हालेलुया। क्योंकि आज भी हमारे भाई पड़ोसी, उन्होंने खाना काबा की तरफ, अगर सूरत बकरा में पढ़ते हैं तो 144 है, तो आज जो उनको अब हुक्म मिला है वो खाना काबा की तरफ अपना रुख कर। तो हमारा खुदा कितना अजीम खुदा है। तो मेरे अजीजों, हम पर कोई पाबंदी, कोई मजबूरी नहीं है हमारी। हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ अपने ध्यान को लगाने की जरूरत है। जब हम किसी भी जगह पर हम जाकर अपने घुटनों के बल हो जाते हैं, तो क्या हमारी दुआ खुदा नहीं सुनता है? तो मेरे अजीजों, आज हमें बिल्कुल खुदा की तरफ निगाहें लगाने की जरूरत है। जब हम खुदा की तरफ अपनी निगाहें लगाते हैं, तो फिर हमारे खुदा की भी हमारी तरफ क्या होती है, निगाह। हम जब उसकी तरफ रुजू लाएंगे तो वो भी हमारी तरफ क्या करेगा, रुजू लाएगा। हम एक कदम चलकर जाएंगे तो वो हमारी तरफ क्या करेगा, 10 कदम चलेगा। तो कितना अजीम खुदा हो। तो मेरे अजीजों, क्योंकि दुनिया के मबूद, महज और बुते, हमारा खुदा तो जिंदा और जलाली खुदा है, जो हमारे साथ कलाम भी करता है, बोलता है, उठता बैठता, सोते जागते, राह चलते हमारी क्या करता है, रहनुमाई करता है। तो मेरे अजीजों, हमें अपने खुदा की तज़ीम करने के लिए, जब हम खुदा के घर में आते हैं और दुआ करने के लिए आते हैं, तो बिल्कुल संजीदगी के साथ, उसके साथ वफादारी के साथ, क्योंकि खुदा हमारा वफादार है, हमारे साथ प्यार करता है। तो मेरे अजीजों, हम जब खुदा के घर में आते हैं तो इधर उधर की बातें छोड़कर हमें खुदा की बातें सुनने की जरूरत होती है। क्योंकि खुदा के खादम रात भर जाग जाकर खुदा के कलाम में से ढूंढते हैं, मेरी और आपकी तरबियत करने के लिए। जैसे कि खुदा मूसा की, जसाया की, यशवा की, सबकी तरबियत करता रहा, तो आज मेरी और आपकी तरबियत के लिए खुदा ने बड़े बड़े खादम सुर में रखे हमारे। हालेलुया। अगर हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं, वारिस की किताब, उसकी 5वें बाब की पहली आयत को ये जरूर पढ़ेंगे। वारिस की किताब, उसका 5वां बाब, उसकी पहली आयत। जो भी कोई निकाले वो जरूर पढ़ने में रहनुमाई करें। जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शिकवा होने के लिए जाना अहमकों के से दबीहे सुधारने से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। आमीन। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के घर में आते हैं तो बड़ी संजीदगी के साथ, हम क्या संजीदा होते हैं? हम तो सिर्फ एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो मेरे अजीजों, एंजॉय ना करें, ये खुदा का घर है। संजीदा होकर, सिंसियर होकर जब हम खुदा के घर में आते हैं, प्रेसिडेंट वाला भी बोलता रहता है, भाइयों बहनों इधर देखें, खुदा के कलाम को सुने, खुदा की बातों पर ध्यान करें। जब हम गीत भी गाते होते हैं तो मेरे अजीजों, फिर भी हम अपनी बातों में लगे रहते हैं, संजीदा नहीं। जब कलाम होता है तो फिर भी हम अपनी बातों में लगे रहते हैं, संजीदा होकर कलाम को नहीं सुनते, हम इधर उधर की बातें करते रहते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा हमारा संजीदगी का खुदा है। सुनना, हम सुनते तो नहीं, कभी अपनी मनमानी करते हैं। हमें सुनने की जरूरत है। जब हम सुनेंगे तो फिर हम बरकत पर बरकत हासिल करेंगे। तो मेरे अजीजों, जैसे कि हमें
अगर हम अमाल स्टेफनस की कहानी सुनिए, वो खुदा के घर में जब आता था घुटनों के बाल होकर दुआ करता था। तो आज हम कितने हैं जो घुटनों के बाल होकर दुआ करते हैं? तो मेरे अजीजों, हमें घुटनों के बाल होकर दुआ करने की जरूरत है, हमें झुकने की जरूरत है। मेरा और आपका खुदा भी और खुदा है। अगर कोई वजीर मिनिस्टर आ जाता है तो हम खड़े हो जाते हैं, अगर कोई खुदा का खादम आ जाता है तो मेरे अजीजों हम उस पर ध्यान ही नहीं लगाते कि वो क्या बोलता है। तो मेरे अजीजों, खुदा अजीम खुदा है, कुदरत वाला खुदा है, उसकी आंख पाक है, वो आपको क्या करती है? देखती है। अगर हम अहमकों की तरह आए या कुर्बानियां या ज़बिये जितने मर्जी गुजार लें तो क्या हमारी दुआ कबूल होगी? नहीं। वो हमारे दिल के और हमारे होठों की कुर्बानी चाहता है। वो दिल की कुर्बानी चाहता है, हमारे होठों की कुर्बानी। हम होठों से बातें बड़ी बड़ी करते हैं, मगर हम जब कहा जाता है बहनों और भाइयों ताली बजाएं या गाएं, कोई गाता ही नहीं, ना कोई ताली बजाता है। करनी तो हमने खुदा की हमदोस्ताइश है। खुदा हमारे होठों की कुर्बानी चाहता है। हम खाली बातें करके टाइम पास करके हम चले जाते हैं, तो ऐसे मेरे अजीजों बरकत नहीं है। हम जब खुदा के घर में आते हैं तो हमें बड़ी संजीदगी के साथ, ऐसे नहीं क्योंकि बतेरे उसके लिए समझते हैं कि बदी करते हैं, मगर लोग समझते हुए भी फिर भी क्या करते होते हैं? बदी करते हैं। खुदा का हुक्म क्या कहता है कि खुदा के घर में आकर बातें करें। अगर हम इधर उधर की बातें करते हैं तो समझ लो बदी कर रहे हैं। ये नहीं कि मेरे अजीजों कई रंग की बदी है, मगर नहीं, हम इधर उधर की ख्यालें या बातें कर कर फिर भी खुदा की हजूरी में क्या कर रहे होते हैं? बदी कर रहे हैं। जब आते हैं तो बड़ी संजीदगी के साथ और खुदा के घर में शिनवा होकर सुनने वाले समझने वाले बनकर आए, तो फिर खुदा आपसे क्या करेगा? कलाम करेगा। और फिर खुदा आपसे भी क्या करेगा? बातें करेगा। मेरे अजीजों, ऐसे ही हम बैठकर अपने टाइम को ज़ाया ना करें, ना इधर उधर की बातें, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है वक़्त की गनीमत को जानों के देना बुरे हैं। तो आज हम उस वक़्त को देखें क्योंकि खुदा हमारा जल्द आने वाला है। उसकी सारी बातें, उसकी नबूवतें पूरी हो रही हैं। क्या कौम पर कौम, सत्य पर सतरंग पर सतरंग, क्या चांद सूरज सितारे, ये सारी बातें नहीं हो रही? ये सब बातें हो रही, काल यहाँ पर क्या है? पढ़ रही। आज मेरे अजीजों, हमें खुदा के कलाम को सुनने की जरूरत है, खुदा की आवाज को सुनने की जरूरत है। खुदा के घर में शिनवा होकर और संजीदा होकर खुदा के घर में आने की जरूरत है। हालेलुया। खुदा के कलाम को पढ़ा और सुने, जन पर खुदा का शुक्र।